Hello students, today we are going to discuss about the thermodynamics. Okay, बच्चों, it is a TAL chapter of 11th physics. Okay, that's why it is very important for exam purpose. Let's start the thermodynamics. Okay, so thermodynamics, clear? Okay, first of all, you have to know about the thermodynamics variables. Thermodynamics variables: pressure, volume, temperature and heat. Okay, so bachcho, as you know very well about the pressure, volume and temperature and heat. What is the temperature? It is the hotness and coolness of a body. Okay, and यूनिट क्या है बच्चे इसका? सर इसका यूनिट है हमारे पास केल्विन. क्लियर? केल्विन. ओके, एंड डिग्री सेल्सियस. Okay, second thing you know about the heat, it is a form of energy. Heat, it is the form of energy. Okay, that's why its unit क्या होगा बच्चे? जूल. Okay, और कैलोरी. जूल एंड कैलोरी. ऐसा यूनिट क्या है बेटा यहाँ पर? जूल है. ऐसा यूनिट क्या है? जूल है. पॉइंट क्लियर? अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो ml स्क्वायर टी टू द पावर -2. सभी को अच्छे से याद होगा. वेरी गुड बच्चों. अगर हम हीट की बात करते हैं, अबाउट द हीट बात करते हैं, तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हीट्स. ओके, रिक्वायर इन थर्मोडायनामिक्स. ओके, अकॉर्डिंगली to the requirement, Q is equals to ml. This is known as latent heat, which is required to change the phase. Okay, phase change heat. Okay, if Q is equals to m as delta T, this is the heat required to rise the temperature of liquid or solid. Okay, so required heat to rise the temperature, Okay, and again Q is equals to NCV delta T or NCP delta T. Okay, this is the heat required to change the temperature of gas at constant volume at constant temperature. Okay, where CP and CV क्या है भाई? Specific heat, right ना? So specific heat of gas की अगर बात करेंगे, for gas, राइट ना, फॉर गैस. तो बच्चों, एज यू नो वेरी वेल, द Cp अपॉन Cv इज इक्वल्स टू गामा, विच इज नॉन एज एडियाबैटिक एक्सपोनेंट. या स्पेसिफिक हीट एक्सपोनेंट. ओके, या और क्या बोल सकते हैं बच्चे इसको? स्पेसिफिक हीट रेशियो. Heat ratio. Okay, it is very important. Okay, for adiabatic calculations, right now. So इसका वैल्यू भी बेटा हमको अच्छे से याद होना चाहिए. और एज यू नो कि Cp जो है आपका कितना होता है? F/2 + 1 into R. What is F? भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम. It is different for different types of gases, just like a monoatomic, diatomic and triatomic के लिए. Point clear? So similarly Cv, specific heat at constant volume, specific heat at constant pressure. So F/2 into R. Clear? Okay. Similarly अगर बच्चों हम बात करते हैं कि गामा जो है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है. ओके, अगर इसका वैल्यू हम बात करते हैं मोनोएटमिक गैस के लिए, फॉर मोनोएटमिक गैस. सो मोनोएटमिक के लिए इसका वैल्यू कितना आता है बेटा हमारे पास? ये आता है 5/3, राइट ना. और सिमिलरली अगर डायएटॉमिक के लिए बात किया जाएगा, डायएटॉमिक गैस, गामा इज इक्वल्स टू 7/5. पॉइंट क्लियर है? सो वैल्यूज गिवन होंगी बच्चे हमें, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे? इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, चलिएगा. सिमिलरली यू हैव टू नो अबाउट द different variables in thermodynamics. Okay, and different quantities in thermodynamics. Okay, if we talking about the work, okay, so work done
सो वर्क डन इज इक्वल्स टू बेटा कितना होता है हमारे पास V1 to V2 प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. बच्चों एज यू नो वेरी वेल वर्क इन अ मैकेनिक्स force into displacement. If we take a cylinder, okay, which has constant cross section area and a piston which move inside the cylinder, okay, then piston move x distance in the cylinder, then volume change V1 to V2, okay. Oh, here F divided by area of the piston and displacement x multiplied by the area, then F upon x is known as pressure, okay, and x into A is known as volume, okay, which is also known as here change in volume. क्या होगा बच्चे? Change in volume. That's why हम इसको क्या लिख सकते हैं? Change in volume, P del B. So this is the work done, okay, in thermodynamics. Okay, so this is the work done in thermodynamics. Okay, it is different for different types of processes. Just like if there is a PV diagram which is known as indicator diagram, okay, a system expand through V1 to V2, okay, and P1 to P2. Then area under the graph between the expansion graph and volume axis is positive work done. Point clear? Similarly, if there is a PV graph and a system goes V1 to V2, here volume decrease, that's why it is a compression. Right now here volume increase, that's why it is expansion. Point clear? If the work done inside the graph negative work done, okay. Similarly, if there is a cyclic process, okay, this is clockwise process, that's why here work done positive and work done equals to the area under the cyclic graph, okay. Similarly, PV here anti-clockwise direction, that's why here work done negative. Point clear? फिजिक्स में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो डायरेक्शन है राइट ना, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेटा केमिस्ट्री से चेंज होता है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है. यहाँ पर क्लॉकवाइज होने पर पॉजिटिव वर्क डन, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होने पर नेगेटिव वर्क डन आता है. पॉइंट क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. चलिएगा सेकंड थिंग, अगर हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी. सो बच्चों इंटरनल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, राइट. बट इन केस ऑफ आइडियल गैस, potential energy equals to 0. That's why internal energy of the gaseous system is depend on the kinetic energy, which is also equals to the F by 2 nR del T या nRT. Point clear? Here F degree of freedom. That's why we can say that the internal energy of the system is totally depend on the kinetic energy of the molecules moving in the gaseous form. Point clear है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा. अच्छा, सेकंड थिंग यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में जब बात की जाएगी तो बच्चों इट इज अ पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन. इट इज अ स्टेट फंक्शन u final minus u initial. It is a state function, right now. It is depend on the final position and initial position, right now, या final state and initial state. That's why it is a path independent. Path independent
ओके, और मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक बच्चों, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, देयर इज अ टू कॉन्सेप्ट्स, ओके, your term macroscopic which deal with matters, okay, and big things which is observable conditions, right now, and microscopic which deals with atoms, ions, means non observable concepts, क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पाथ इंडिपेंडेंट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट आपको एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट जानना पड़ेगा कि वर्क डन एंड हीट, इट इज अ पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट एंड स्केलर, बच्चों स्केलर तो ये भी है स्केलर, राइट ना, स्केलर एंड मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, क्लियर है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, ओके। सिमिलरली अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर यहाँ जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स थे, थर्मोडायनामिक डेफिनेशंस हैं, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, ओके, इनसे रिलेटेड हमारे पास थर्मोडायनामिक्स लॉज बनते हैं, राइट ना, जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, जीरोस लॉ, सेकंड लॉ, राइट ना, उन्हीं को हम यहाँ पे एक बार और देखते हैं। तो बच्चों देखना, हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स बच्चों इसको जूल्स लॉ भी कहते हैं, राइट ना, जूल्स लॉ भी कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स का जूल्स लॉ भी कहा जाता है। सो ये क्या बोलता है, इफ द हीट इज गिवन टू अ सिस्टम विच इज कैपेबल टू डू वर्क एंड change in internal energy, then the given heat is the sum of change in internal energy plus work done, clear? So बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जब हम हीट के बारे में बात करते हैं तो हीट टेक पॉजिटिव व्हेन absorb, okay, heat take negative when reject, okay. Similarly, if we are talking about the internal energy, then you take positive when temperature increase, right now, or you take negative when temperature decrease, point clear? Similarly अगर हम वर्क डन के बारे में बात करते हैं तो बच्चों ध्यान रखिएगा, if volume increase then take it positive, right? If volume decrease then take it negative, क्लियर है भाई? साइन कन्वेंशन आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट ना, गिवन हीट और चेंज इन वर्क डन को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम मेंशन करना चाहते हैं तो डेल क्यू को पॉजिटिव या क्यू को पॉजिटिव कब लिया जाएगा, जब एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, राइट ना, नेगेटिव कब होगा, जब इसको रिजेक्ट हीट किया जाएगा, डेल यू पॉजिटिव कब आएगा, जब टेम्परेचर राइज करेगा सिस्टम का, जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तब उसको नेगेटिव लेंगे, पॉइंट क्लियर है? वर्क डन के केसेस में अगर एक्सपांशन हो रहा है, जनरली वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वर्क डन को क्या लिया जाता है बेटा, पॉजिटिव, और अगर डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन को क्या लिया जाता है बच्चे, नेगेटिव, पॉइंट क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ओके। हियर सम लिमिटेशंस of first law of thermodynamics, first law, okay, first limitations जो है, it not inform about the direction of flow of heat, the direction of flow of heat, okay, it means हीट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, राइट ना, सराउंडिंग टू सिस्टम जा रही है, सिस्टम टू सराउंडिंग जा रही है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्म नहीं करता, राइट ना। सेकंड थिंग, इट इज नॉट इन्फॉर्म हाउ मच हीट कन्वर्ट into work and internal energy, right now. So these are the
लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? सेकंड थिंग ये भी है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कन्वर्ट या कन्वर्जन इन द हीट इन द वर्क डन भी एक लिमिटेशंस की फॉर्म में आ जाता है बच्चे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, सर इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने जीरोथ लॉ को डेवलप किया, राइट ना? जीरोथ लॉ जो कि फावलर्स लॉ के नाम से जाना जाता है, जीरोथ लॉ, ओके, या इसको फावलर्स लॉ भी कहते हैं, फावलर्स लॉ, राइट ना? फावलर्स लॉ। तो बच्चे ये फावलर्स लॉ जो है, राइट ना, फावलर्स लॉ के बारे में बात किया जाए तो इसने बोला इफ देयर इज अ सम बॉडी or system are in thermal equilibrium, then they have a same property which is known as temperature, means if there is a ABC three bodies are in contact and in thermal equilibrium, then they have same property which is known as temperature, okay, means thermal equilibrium के केस में इन bodies का जो temperature होगा TA is equals to TB is equals to TC, okay, so it is indicate about the direction of flow of heat, okay, means heat flow from higher temperature to lower temperature, heat flow from higher temperature to lower temperature, heat flow from higher temperature to lower temperature body, okay, clear, okay. Here it be about the second law of thermodynamics, thermodynamics, okay, so it is a natural law, it is the natural law, yeah, law of nature, it is also known as law of nature, right now, law of nature, right now, according to nature the heat flow from higher temperature to lower temperature, point clear? So there is a two statement, basically first statement Kelvin Planck statement, according to the Kelvin Planck statement, it is impossible to design a machine which absorb heat from higher temperature body and convert entire heat into the work, right now, convert entire heat into the work। बच्चों इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि according to the Kelvin Planck it is impossible to design a machine which absorb heat from higher temperature body and convert it into the and convert it entirely into the ये इंपॉर्टेंट है बेटा, entirely है ना, into the work, why work भाई, entirely क्यों? बच्चों देखो इस बात को ध्यान दीजिएगा, heat can not convert entirely into work but work can convert entirely into heat, ओके, सो इस चीज को आप समझिएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम अगर वर्क को हीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, हीट को इंटायरली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। व्हाई? बिकॉज बच्चों इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वही चीज है कि विदाउट एनी लॉस हम किसी भी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे इंजन में, राइट ना, मोटरसाइकिल में हम लोग 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो बच्चों उसका कुछ पार्ट ही हमको काम आता है, राइट ना, 36%, 38%, 35%, 30% तक ही हम अभी तक अचीव कर पाए एफिशिएंसी ऑफ द इंजन।
राइट ना, रिमेनिंग 60% 70% पार्ट ऑफ हीट जो है हमारा वेस्टेज हो जाता है बाई मीन्स ऑफ एग्जॉस्ट, राइट ना, बाई द टेम्परेचराइज द बॉडी ऑफ द मोटरसाइकिल, राइट ना, और इंजन ऑफ द गाड़ी। पॉइंट क्लियर? सो बच्चों इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम हीट को टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वर्क को टोटली हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। सो बच्चों मैकेनिकल इक्विवेलेंट J इज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन हीट, दैट मींस जूल अपॉन कैलोरी। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि what is the mechanical equivalent, that's why we can say that it is the factor, right now, to convert heat into work. Okay, point clear? और इसका अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो यूनिट है जूल पर कैलोरी है। ओके, एंड डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन लेस, राइट ना, क्योंकि अप भी एनर्जी का डायमेंशन है, डाउन भी एनर्जी का डायमेंशन है, राइट ना। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एनर्जी का डायमेंशन होने की वजह से डायमेंशन लेस क्वांटिटी m0 l0 t0। पॉइंट क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ओके, हीट इंजन बेस्ड ऑन द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। हीट इंजन बेस्ड ऑन द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ओके, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड स्टेटमेंट, सो बच्चों ये है क्लॉसियस स्टेटमेंट, Clausius statement. Okay, so according to the Clausius, similarly it is impossible to design a machine which transfer heat from lower temperature to higher temperature without any add. Okay, means कोई भी ऐसी मशीन हम नहीं बना सकते जो बिना किसी ऐड के, बिना किसी मदद के, राइट ना, या एनर्जी या वर्क डन प्रोवाइड किए वो टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट को निकाले और हायर टेम्परेचर बॉडी को ट्रांसफर करे। आप सपोज कीजिएगा, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मुझे गर्मी लगती है, राइट ना, सो मैं एसी के सामने बैठ जाता हूँ, और अगर ज्यादा गर्मी लगती है तो एसी चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि एसी को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो हमारे रूम को कूल नहीं कर सकता, राइट ना। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? मीन्स हमको उसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा, दैट्स वाई हमारे रूम का टेम्परेचर जो कि सिंक की तरह बिहेव कर रहा है, सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें टेम्परेचर कम है, राइट ना। टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ से हीट बाहर निकाला जो कि एनवायरनमेंट है, एज अ सिंक बिहेव करेगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर एनवायरनमेंट का है और लोअर टेम्परेचर इस समय रूम का है। लेकिन हम हीट को कहाँ से इनटेक कर रहे हैं भाई? हीट को हम रूम से इनटेक कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नॉन एज सोर्स। ओके, और हीट को कहाँ पर हम बाहर एग्जॉस्ट कर रहे हैं भाई? एनवायरनमेंट में, राइट ना। इसीलिए एनवायरनमेंट इस समय किसका काम करेगा बेटा? आपके सिंक का काम करेगा। पॉइंट क्लियर? तो इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। सो अकॉर्डिंग टू द क्लॉसियस, इट इज impossible to design a machine which transfer heat from lower temperature body to higher temperature body without any add। ओके, बिना किसी मदद के ये हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। दैट्स वाई द रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन द क्लॉसियस स्टेटमेंट। बच्चों इसके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छे से। क्लॉसियस स्टेटमेंट पे रेफ्रिजरेटर बेस्ड है, राइट ना।
क्लॉसियस स्टेटमेंट पे रेफ्रिजरेटर बेस्ड है। पॉइंट क्लियर है? ओके। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि सर हीट इंजन एंड हाइपोथेटिकल इंजन विच इज नॉन एज कार्नोट इंजन। ओके, सो इनके बारे में बात करते हैं बेटा। एज यू नो अबाउट द कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन, it is a hypothetical engine. It is a hypothetical engine which have 100% efficiency. It is also a reversible engine. Reversible क्या होता है भाई? Reversible and irreversible. There are two process, reversible and irreversible. Okay, reversible process में जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है, स्टेट को गेन कर लेता है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी और मैटर। पॉइंट क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 100% इफिशियंसी है एंड रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल। Okay, that means Q1 upon T1 is equals to Q2 upon T2. What is the Q1 and Q2 and T1 and T2? It is the temperature of hot reservoir and cold reservoir. Okay, or heat absorbed from the hot reservoir Q1 and heat delivered to the cold reservoir Q2. Point clear? So बच्चों, this is the condition of Carnot engine, Q1 upon T1 and Q2 upon T2, and also efficiency 100%. Okay, efficiency 100%. Second more thing जो आती है यहाँ पर, the efficiency of Carnot engine is always greater than the practical engine. जितने भी इंजन है उन सबसे ज्यादा efficiency किसकी होगी बेटा? Carnot engine की. If there is any scientist who tell about their engine that it has efficiency greater than Carnot engine, it is not possible, right now it is not possible in practical. Okay, so इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब भी हमें कोई इंजन के बारे में बताया जाएगा, उसकी इफिशियंसी के बारे में बताया जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उस टेम्परेचर पे, राइट ना, उस टेम्परेचर डिफरेंस पर हम किसकी इफिशियंसी निकालेंगे बेटा? कार्नोट इंजन की इफिशियंसी निकालेंगे। अगर उस इंजन की इफिशियंसी कार्नोट इंजन की इफिशियंसी से कम है, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि वो इंजन पॉसिबल है, राइट ना, प्रैक्टिकल में, अन्यथा वो पॉसिबल नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चलेगा। अब अगर हम बात करते हैं हीट इंजन एंड कार्नोट इंजन सिमिलर इंजन है, बट हीट इंजन राइट ना इज अ प्रैक्टिकल इंजन एंड कार्नोट इंजन अ hypothetical engine, okay, which have 100% efficiency. Heat engine, okay, so heat engine डिजाइन कर लेते हैं। there is a some design, okay, T1 hot reservoir, T2 cold reservoir, it is also known as source, okay, या इसको क्या बोल सकते हैं? hot reservoir. रिजर्वायर क्या होता है बेटा? जहां से हम कितना भी हीट लें, राइट ना, उसके टेम्परेचर पे कोई भी अफेक्ट ना पड़े, राइट ना। और सिमिलरली सिंक क्या है? जिसको कितना भी हीट दिया जाए, राइट ना, उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो कोल्ड रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर। ओके, सिमिलर थिंग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने हॉट रिजर्वायर से Q1 हीट को अब्सॉर्ब किया और इंजन ने जो वर्क डन किया W, और रिमेनिंग हीट को हमने Q2 को डिलीवर कर दिया टू द सिंक। ओके, सो हियर वी कैन से दैट Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? W वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। ओके, सो here the efficiency, as you know about the efficiency eta, right now, as you know about the efficiency eta is equals to output upon input into 100%, राइट ना। सो आउटपुट क्या है बच्चे? यहाँ पर आउटपुट है वर्क डन बाय द इंजन। ओके, इनपुट क्या है सर? द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स।
राइट ना। सो बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं W अपॉन Q इन 1 into 100, राइट ना। दिस इज द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ईटा. Okay, this is also the efficiency of Carnot engine, but heat engine always have less than efficiency than Carnot engine. Clear है? So बच्चों इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है. आप बताइएगा यहाँ पर अगर मुझे Q1 की वैल्यू को पुट करना है तो Q1 की जगह अगर मैं W की वैल्यू पुट करता हूँ तो भाई W कितना है यहाँ पर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू बेटा यहाँ क्या कर सकते हैं 100%. क्लियर है? सिमिलरली अगर बच्चे इसको थोड़ा सा और एलेबरेट किया जाए सो Q2 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू बेटा कितना आ जाएगा मेरे पास 100%. पॉइंट क्लियर है? सो बच्चे इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा. ये दिस इज द इफिशियंसी. इफ वी टेक द कंडीशन ऑफ Carnot इंजन Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2. Okay, this condition. So we can put the Q1 T1 Q2 T2 replace कर सकते हैं, right now. So here the new efficiency formula eta is equals to क्या आ जाएगा बच्चे 1 minus T2 upon T1 into 100. ओके बच्चों यहाँ स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं हीट इंजन कार्नोट इंजन से रिलेटेड उनको सॉल्व करने के लिए हम इन तीनों फार्मूले को एक फॉर्म में लिख लेते हैं और इनको ही इक्वेट करके हम आंसर निकालते हैं आसानी से. ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से. ईटा इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन हीट एंड अब्सॉर्ब हीट 100% इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 into 100, okay, equals to 1 minus T2 upon T1, okay, into 100%. बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर टेम्परेचर गिवन हो सोर्स का टेम्परेचर T1 सिंक का टेम्परेचर T2 सोर्स से हीट अब्सॉर्ब Q1 सिंक को गिवन हीट Q2 राइट ना. सो इस बात को आप ध्यान रखिएगा. T1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ सोर्स राइट ना सोर्स और T2 क्या है बच्चे यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ सिंक राइट ना. सिंक जनरली क्या होता है बेटा आपका लोअर टेम्परेचर बॉडी होता है सिंक. लेकिन जनरली हमें कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर के केस में सिंक का काम सोर्स करता है सोर्स का काम सिंक करता है. तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखना है और जो अननोन क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते समय आपको एक बार को फॉर्मुलेशन को सही से चेक करना है राइट ना. एक बार लिख कर देखना है क्या क्या है तो आसानी से हमारे पास इसके आंसर्स मिल जाते हैं. पॉइंट क्लियर है? चलिएगा. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास आएंगे मोस्टली न्यूमेरिकल्स में इन तीनों को इक्वेट करके हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं. क्लियर. अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर का. रेफ्रिजरेटर के लिए सो बच्चे जब हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा. रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी. ओके सो बच्चे यहाँ पर ये टेम्परेचर T2 है. दिस इज सोर्स. ओके यहाँ से हीट को हमने Q2 को अब्सॉर्ब किया है और इसको वर्क डन W दिया है बेटा. क्लियर है? और जो एनर्जी हमने डिलीवर किया है हीट को Q1 किया है किसको किया बेटा सिंक को जिसका टेम्परेचर कितना है T1 टेम्परेचर T1. ओके दिस इज द सिंक. ओके दिस इज द सोर्स. बच्चों ध्यान दीजिएगा इंजन के अंदर हायर बॉडी टेम्परेचर जो है सोर्स का काम करता है और लोअर बॉडी टेम्परेचर सिंक का काम करता है. लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर हायर बॉडी जो है सिंक का काम करेगा और लोअर बॉडी जो होगा वो सोर्स का काम करेगा. ठीक है. अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है जो सोर्स होता है जहां से हीट को लिया जाता है उसको जनरली हम इनटेक कहते हैं INTAKE. ओके और जहां पर हम सिंक होता है उसको हम एग्जॉस्ट भी कह सकते हैं राइट ना. तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. इस टाइप से सिंक राइट ना एग्जॉस्ट और सोर्स बेटा ये क्या है आपका इनटेक. ठीक है इस टाइप से टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है. सो हियर द अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेटा रेफ्रिजरेटर के केस में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाला जाता है. इंजन के केस में एफिशिएंसी निकाला जाता है. सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP इज इक्वल्स टू
क्या होता है भाई, COP इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिंक अपॉन वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर। क्लियर है? सो या वर्क, ठीक है। सो इसको हम निकालते हैं तो Q2 ओके अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है। सिमिलरली 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। पॉइंट क्लियर है? अगर हम इसको लिखना चाहते हैं टेम्परेचर की फॉर्म में, देन कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ कार्नोट इक्वेशन। सो कार्नोट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको कन्वर्ट किया जाए सो हम कह सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2, ओके। सिमिलरली Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ओके। सिमिलरली Q2 अपॉन वर्क डन, राइट ना। इन तीनों को इक्वेट करके हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएगा, टेम्परेचर दिया होगा सोर्स का, सिंक का, राइट ना, या हीट अब्सॉर्ब दिया होगा, हीट डिलीवर्ड दिया होगा, दिस इज द हीट डिलीवर्ड टू द सिंक, heat delivered to the sink, this is the heat absorbed from the source, okay, okay, this is the work done। पॉइंट क्लियर है? सो बच्चों इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर मुझे रेफ्रिजरेटर ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर एंड कार्नोट हीट इंजन के लिए कोई रिलेशन दिया जाए, जैसे इफिशियंसी एंड COP में, तो कैसे निकाला जाता है? तो बेटा COP को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। देखिएगा COP को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स व्हाई रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, ओके। सो क्या रिलेशन रहेगा बेटा? सो बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, ओके। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड एफिशिएंसी या COP एंड एफिशिएंसी, राइट ना। यहां से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। पॉइंट क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं बच्चों। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। ओपन सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सिस्टम, ओके। बच्चों ओपन सिस्टम क्या है? जो विच परमिट द मास मैटर एंड एनर्जी टू एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। जैसे हम अपनी बॉडी की बात कर लेते हैं, ह्यूमन बॉडी जो है एक ओपन सिस्टम है, राइट ना, जो मॉइस्चर के थ्रू मास को या मैटर को एक्सचेंज कर रहा है, किसके साथ में? इन्वायरमेंट के साथ में, राइट ना, और हीट भी एक्सचेंज हो रही है, राइट। और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो भाई यहां लिख सकते हैं विच परमिट टू एक्सचेंज मैटर and energy matter and energy matter and energy with the system and surrounding या between the system and surrounding, between the system and surrounding, between the system and surrounding means हमारा environment, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल के हम कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी, ओके, और अ कप ऑफ टी या हॉट टी। बच्चों आप देखेंगे कि एक हॉट कप ऑफ टी हमने ले लिया है, और इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चों ये जो है परमिट कर रहा है मास एंड हीट एनर्जी को एक्सचेंज, राइट ना, विद द सराउंडिंग, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोज सिस्टम की, क्लोज सिस्टम, ओके, द सिस्टम विच अलाउ और विच परमिट ओनली एनर्जी एक्सचेंज with system and with surrounding, energy exchange with surrounding, राइट ना, जो हीट एनर्जी को, राइट ना, परमिट करता है केवल एक्सचेंज, राइट ना, विद द सराउंडिंग इज नोन एज क्लोज सिस्टम, राइट। तो बच्चों क्लोज सिस्टम के लिए हमने क्या किया? एक कप ऑफ टी लिया, उसको एक कार्डबोर्ड से क्या कर दिया बेटा? कवर कर दिया है, राइट ना, एक कार्डबोर्ड से या एक प्लेट से कवर कर दिया है। तो उस केस में केवल हीट एनर्जी ही जो है कार्डबोर्ड के थ्रू या उसके वॉल्स के थ्रू बाहर जा सकती है, अन्यथा यहाँ पर
क्या होगा बच्चे, हीट जो है हमारी ट्रांसफर नहीं होगी। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करता, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, okay, if we are talking about the isolated system, then as you know very well, which do not permit na permit, right now, heat या matter and energy to exchange between system and surrounding, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एनर्जी को परमिट नहीं करता, राइट ना, उसे क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। दिस इज आल्सो नोन एज थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क। ओके, आगे चलते बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगेन अगर हम आगे चलें तो हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के लिए, राइट ना, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। राइट ना, सो बस बच्चे फर्स्ट थर्मोडायनामिक प्रोसेस हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में अगर कहा जाए, द प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, राइट ना, ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या हो, चेंज हो, लेकिन हमारा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट हो। सो टेम्परेचर कैसा है बेटा, कांस्टेंट, दैट्स व्हाई ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी बेटा, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? सो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट, द चेंज इन temperature in the isothermal process will be 0. Point clear है? So बच्चों PV is equals to constant, it means P inversely proportional to volume, right? That means we can draw a PV diagram, pressure volume diagram, okay, which is represent a hyperbolic graph, right ना? So या hyperbola, right ना? So बच्चे here we can say that the hyperbolic graph, okay, the temperature T2 and temperature T1। बच्चों एक और आप इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, राइट ना, और ग्राफ इस ओरिजिन से जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होगा उतना ही उसका टेम्परेचर होगा। इट मींस T2 ग्रेटर देन T1। पॉइंट क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर स्लोप ऑफ द ग्राफ निकाला जाए तो बच्चों आपने मैथमेटिक्स में सर वेरिएबल टू वेरिएबल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। सो आप देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया जाए सो डेल वी, फिर सेकंड को छोड़ दिया जाए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया जाए डेल पी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा यहाँ पर 0। सो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, दैट्स वाई अगर हम यहाँ से स्लोप निकालना चाहते हैं तो स्लोप क्या होगा, डेल पी अपॉन डेल वी, राइट ना, डेल पी अपॉन डेल वी। सो स्लोप, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का पी अपॉन वी। ओके, दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ, राइट ना, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ। सिमिलरली अगर मैं इस डी को इस साइड में डिवाइड कर देता हूं तो डेल पी अपॉन डेल वी, ओके, सो डिवाइड करने पर कहां जाएगा बेटा, ये डिनोमिनेटर में। दैट्स व्हाई अगर आप ध्यान दें तो इस नेगेटिव पॉइंट को इधर लाने पर हमारे पास पी आ जाता है, राइट ना। सो दिस इज ऑल्सो नॉन एज बल्क मॉडुलस। क्या है बच्चे, बल्क मॉडुलस मीन्स बल्क मॉडुलस
work modulus in isothermal process equals to the pressure in isothermal process. पॉइंट क्लियर है. सिमिलरली अगर बच्चे यहाँ पर बात किया जाए स्पेसिफिक हीट, ओके, एज यू नो Q इज इक्वल टू M एज डेल्टा T, राइट ना. सो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन M डेल्टा T, ओके. बट फॉर आइसोथर्मल के केस में डेल T टेंस टू जीरो, right ना, or equals to zero, that means it is also equals to infinity. The specific heat in isothermal process infinity, right ना. इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. In case of isothermal process specific heat कितना होता है बेटा, infinity होता है. पॉइंट क्लियर है. अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी आ जाता है कि अगर हम आइसोथर्मल की बात करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल्स अगर देखे जाएं तो बेटा हम कह सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, राइट ना. भाई यहाँ पर जब आइस मेल्ट करती है तो 0 डिग्री पर आइस एंड 0 डिग्री पर वाटर दोनों अवेलेबल होते हैं. पॉइंट क्लियर है. तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्टीम फॉर्मेशन, राइट ना. ये क्या है भाई, ये आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं, राइट ना. भाई कंडेंसेशन भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, राइट ना, और फ्रीजिंग भी आइसोथर्मल प्रोसेस है. पॉइंट क्लियर है. अच्छा, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कंडीशन की बात करें, कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा. प्रोसेस यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, राइट ना. और सेकंड वन जो है इसकी कंडीशन कि सर यहाँ पर all walls of system and surrounding system must be conductor. कैसी होनी चाहिए बेटा, कंडक्टर होना चाहिए जो हीट का फ्लो आसानी से कर सके, राइट ना. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वेरी स्लो प्रोसेस जो है, राइट ना, इस केस में जब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होता है तो इसको क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है, राइट ना, या क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम. पॉइंट क्लियर है. सो क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट ना, इन द प्रोसेस. पॉइंट क्लियर है. या एनी स्टेज ऑफ प्रोसेस. तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है क्वासी स्टैटिक्स, है ना, इक्विलिब्रियम. ये बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी यही रिप्रेजेंट करता है. पॉइंट क्लियर है. अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट ना. सो बच्चों वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस अगर निकाला जाए, सो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस 2.3, राइट ना, nRT log V2 upon V1. Similarly, अगर P1 V1 is equals to P2 V2, that's why V2 replaced by P2 and V1 replaced by P1. Okay, then we can also write this equation, this formulation nRT log P2 upon P1. पॉइंट क्लियर है. इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए. आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सही से बन जाते हैं, ठीक है. इफ अ प्रोसेस, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट ना, टेक फ्रॉम सम पोजीशन टू another position, just like a initial volume convert into double of the volume, राइट ना. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है. चलिएगा अगेन बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस. सो बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात कहा जाए, द प्रोसेस विच कैन अलाउ द चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम बट डू नॉट एक्सचेंज एनी हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट ना. सो ऐसा सिस्टम या ऐसी प्रोसेस जो क्या करता है बेटा, हीट का एक्सचेंज अलाउ नहीं करता. इट मींस चेंज इन हीट क्या होगा बेटा, यहाँ पे जीरो होगा. इस केस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस. तो यहाँ पर
पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है बच्चे, ठीक है। और अगर ऐसा आएगा तो आप देखिएगा v की पावर कैसी है, यहाँ पर गामा है। जब v की पावर गामा होगी दैट मीन्स पावर बढ़ने पर जो हमारा हाइपरबोलिक ग्राफ है राइट ना, वो क्या हो जाएगा, मोर स्टीपर हो जाएगा, ठीक है। सो देखिएगा यहाँ पर हमने अगर ग्राफ बनाया तो आइसोथर्मल से भी क्या होगा, स्टीपर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग बनेगा, जैसे मोनो एटमिक के लिए राइट ना गामा इज इक्वल टू 1.33, डायटोमिक के लिए गामा इज इक्वल टू 1.4 राइट ना, और पॉली एटॉमिक के लिए गामा इज इक्वल टू 1.67 राइट ना। इस टाइप का ये एडियाबेटिक का ग्राफ बन जाता है बेटा। अगर हम इसका स्लोप की बात करते हैं तो बेटा अगेन हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको मान लेते हैं। फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन राइट ना इंटू डेल वी, प्लस सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हमने किया इक्वल टू 0 आ गया। अगर बच्चे हम यहाँ पे स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप क्या आ जाएगा, डेल पी अपॉन डेल वी राइट ना। सो कितना आ जाएगा, माइनस का गामा पी अपॉन वी। दिस इज द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ग्राफ या पीवी ग्राफ राइट ना। अगर यहाँ पे हम देखें तो एडियाबेटिक पीवी ग्राफ का जो स्लोप है राइट ना एडियाबेटिक का, और ये जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइसोथर्मल को। सो यहाँ से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बन जाता है, द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक है ना इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल के गामा टाइम्स होगा बेटा यहाँ पे, क्लियर है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन वी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू द गामा पी टाइम्स राइट ना, या गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर राइट। तो बच्चे दिस इज द बल्क मॉडुलस के ओके। सो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। सिमिलरली अगर स्पेसिफिक हीट की बात की जाए तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पर कितनी होती है बेटा, 0 होती है। व्हाई, बिकॉज यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर है राइट ना वो यहाँ पर होता है राइट ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा आप कि एडियाबेटिक के केस में स्पेसिफिक हीट कितना होता है बेटा, 0 होता है, क्लियर चलेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी सडन प्रोसेसेस हैं वो सभी एडियाबेटिक हैं राइट ना। सडन होने की वजह से दे डोंट हैव द एज मच टाइम टू टेक हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट और सराउंडिंग, ठीक है। तो बच्चे या रिलीज इन इन्वायरमेंट और सराउंडिंग, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बर्स्टिंग ऑफ टायर, ट्यूब, बैलून्स, ये सभी किसके केस हैं भाई, एडियाबेटिक के केस हैं राइट ना। अच्छा हाँ, जो हमारा साउंड है राइट ना, ये साउंड भी जब गैस में प्रोपेगेट होता है या हमारे इन्वायरमेंट में जब प्रोपेगेट कर रहा है तो दिस इज ऑल्सो अ एडियाबेटिक प्रोसेस राइट ना। द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अ एडियाबेटिक प्रोसेस। पॉइंट क्लियर है। सो क्या बोल सकते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड in gas is also a adiabatic process. So बच्चे अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूंगा तो क्या होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं कंडीशन की बात करता हूं तो कंडीशन के केस में इट इज अ सडन प्रोसेस, सडन एंड क्विक प्रोसेस, इसको सडन एंड क्विक प्रोसेस बोल सकते हैं, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि सर वॉल्स ऑफ द सिस्टम क्या होंगी, तो वॉल्स ऑफ द सिस्टम इंसुलेटर का काम करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। इंसुलेटर होंगी तभी हीट का ट्रांसफर आसानी से नहीं होगा राइट ना। तो भाई यहाँ पर ऑल वॉल्स ऑफ सिस्टम इज इंसुलेटर ओके। सिस्टम की सभी वॉल्स कैसा बिहेव करेंगे बेटा, इंसुलेटर का बिहेव करेंगे। पॉइंट क्लियर है, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। अच्छा सिमिलर थिंग में अगर मैं आपसे यहाँ पे कहता कि भाई हमारे पास वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस कितना है, तो बच्चों इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, वर्क डन इन एडियाबेटिक कितना होता है, तो बच्चे ये होता है NR T इनिशियल माइनस T फाइनल ओके अपॉन गामा -1
ओके। सिमिलरली अगर एनआरटी को चेंज कर दिया जाए तो P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर? तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। पॉइंट क्लियर है? तो बच्चे यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि वर्क डन इन एडियाबैटिक, ओके, वर्क डन इन आइसोथर्मल हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अगर इन दोनों केसेस में हम थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ को यूटिलाइज करें तो देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर बाहर आते हैं। देखो कैसे आते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करूं, सो बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो बच्चे यहाँ पर ये कितना है? 0 है। दैट्स वाई डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का डेल यू। इट मीन्स द वर्क डन ऑन द और बाई द सिस्टम, राइट ना, इज इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ओके, इफ वी वर्क डन ऑन द सिस्टम then the internal energy increase, right ना, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा उस केस में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहता कि सिस्टम एक्सपांड कर रहा है तो टेम्परेचर जो होगा डिक्रीज होगा, और अगर सिस्टम क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है या कंप्रेस हो रहा है, तो उस केस में सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा, या गैस का टेम्परेचर क्या होगा बच्चे? यहाँ पर इंक्रीज होगा। इस बात को आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितना मैं वर्क डन करूंगा एडियाबैटिक के केस में, वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के काम आएगा। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, सिमिलर थिंग अगर मैं किसकी बात करता, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, अगर सिमिलर थिंग मैं आइसोथर्मल में कहूँ, इन आइसोथर्मल, तो बच्चे जब आइसोथर्मल की बात की जाती है तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, राइट ना। तो आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर चेंज 0 होता है। दैट्स वाई टेम्परेचर चेंज 0 होने पर डेल यू 0 होगा बच्चे, राइट ना। आइसोथर्मल की कंडीशन भी है डेल यू इज इक्वल टू आल्सो 0 फॉर आइडियल गैस, राइट ना। आइडियल गैस के केस में ये 0 होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितनी हमने हीट दी है वो टोटल वर्क डन में काम आएगी। पॉइंट क्लियर है? और यहाँ पर जो हमने वर्क डन किया या सिस्टम ने वर्क डन किया वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के काम आएगी। पॉइंट क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब एक्सपांड होता है तो वर्क डन जो सिस्टम ने किया है उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ द गैसियस सिस्टम डिक्रीज, राइट ना। चलेगा, आगे चलते हैं बच्चों। ये थे हमारे आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट ना। आइसोथर्मल एडियाबैटिक हर जगह पर आपको यूटिलाइज होंगी। थर्मोडायनामिक्स में सबसे ज्यादा रोल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस का होता है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात किया जाए तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आती है आइसोबैरिक। ओके, आइसोबैरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच प्रेशर चेंज इक्वल्स टू 0, मतलब प्रेशर डू नॉट चेंज बट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कैन चेंज, राइट ना। सो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास प्रेशर चेंज नहीं हो रहा सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा इस केस में। ओके, यहाँ पर किसको कंट्रोल किया गया बेटा? प्रेशर को कंट्रोल किया गया। दैट मीन्स प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता P और ये T, दैट मीन्स इसने प्रेशर को कंट्रोल किया है, तो ये एक्सपांशन का काम होगा, और लौट कर आएगा तो कंप्रेशन होगा। सो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसको कंट्रोल किया? प्रेशर को। बच्चों देखिएगा, बात ध्यान दीजिएगा, जो इंटेलिजेंट होगा या हम कह सकते हैं जो स्मार्ट बंदे होते हैं वो अपने प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, राइट ना, और हमारा अपना जो रिवीजन है, प्रैक्टिस है, उसको कंटिन्यू रखते हैं, राइट। और एग्जाम में भी वो प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम एग्जाम में जा रहे हैं और हमने प्रेशर ले लिया, फोकट का प्रेशर, हमारा क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, क्या अरे होगा जो होगा देखा जाएगा। लेकिन करंट में आपने मेहनत की है, आपने प्रैक्टिस की है, आपने अननोन क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आपको हमेशा 100% आपके सिलेक्शन का जो वे है क्लियर है, राइट ना। सो आप इस बिलीव के साथ चलिएगा। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता कि देयर इज अ प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट कौन करता है? चालू आदमी, right now that's why this is also we can say that this is a Charles law, okay, this is only a trick
द प्रेशर कंट्रोल कौन करता है? चालू आदमी, दैट्स वाई चार्ल्स लॉ। तो इसको हम चार्ल्स लॉ भी कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं इसको? चार्ल्स लॉ। तो आपके याद रखने के लिए है कि चालू आदमी प्रेशर कंट्रोल करता है, इसीलिए वो सफल हो जाता है। इसीलिए हम ध्यान रखेंगे कि चार्ल्स में प्रेशर कंट्रोल होता है। चार्ल्स लॉ में क्या कंट्रोल होता है बेटा? प्रेशर। इसको हम चार्ल्स लॉ भी कहते हैं, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। क्लियर है आपको? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं यहाँ पे वर्क डन की बात करता, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क डन है P डेल V, ओके, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारा वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, आइसोबैरिक प्रोसेस के अगर एग्जांपल की बात की जाए बच्चों, तो एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, है ना, एट ATM प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले वाले प्रोसेस की, राइट ना, तो हमारे पास आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? जिसमें वॉल्यूम को कंट्रोल किया जाता है, मींस डेल V इज इक्वल टू 0, ओके। सो वॉल्यूम कंट्रोल होगा, सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब एक बात बताइएगा, जो यहां पर वॉल्यूम को कंट्रोल किया है तो वर्क डन कितना? 0। और वर्क डन जिसका 0, जैसे किसी व्यक्ति का वर्क डन काउंट ही ना किया जाए तो इसका मतलब वो भोला है, राइट ना। भोला बोलते हैं ना, यार ये भोला है, राइट। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, भोले व्यक्ति का कभी भी वर्क डन कंसीडर नहीं किया जाता। इसीलिए यहां पर भोला कौन है? गैलुशाक लॉ है। ये कौन सा लॉ है? गैलुशाक, राइट ना, गैलुशाक लॉ। आपने केटीजी में पढ़ा होगा गैलुशाक लॉ। सो दैट्स वाई इसको हम बोल सकते हैं भोला। क्या बोल सकते हैं? भोला, राइट। और इसके ऊपर क्या बोल सकते थे हम लोग बच्चे? चार्ल्स, बोले तो चालू, ठीक है, चार्ल्स के लिए चालू और गैलुशाक के लिए भोला। और अगर ये भोला है तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस इक्वल्स टू 0, वर्क डन इन दिस प्रोसेस इक्वल्स टू 0। सो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, पीवी ग्राफ जो आएगा ऐसा आएगा इसका, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों के लिए ही अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करता हूं तो देखिएगा ध्यान से कि बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ में क्या आएगा। सो फर्स्ट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और सेकंड इधर क्या है? फर्स्ट लॉ से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। चलेगा बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां प्रेशर कंट्रोल है, राइट ना। सो डेल P इक्वल्स टू 0, और इस केस में क्या आ रहा है? डेल V इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अगर हम देखेंगे, डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W, राइट ना। सो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बेटा? प्रेशर कांस्टेंट है। सो जितनी भी हम हीट देंगे, राइट ना, वो क्या काम करेगी बेटा? इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी, साथ ही साथ में वर्क डन भी करेगी। पॉइंट क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेल W कितना है इस केस में? 0 है। जब डेल W 0 है तो जितनी हमने हीट दी है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के काम आएगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डेल Q गिवन हीट इक्वल्स टू डेल U इक्वल्स टू NCV डेल T, ओके। इस फॉर्मुलेशन को हम यहीं से मेंशन करते हैं। पॉइंट क्लियर है? इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोसेस, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस। द साइक्लिक प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेटा साइक्लिक प्रोसेस, तो बच्चे साइक्लिक प्रोसेस के केस में हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? 0 होता है। दैट मीन्स अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ध्यान से देखेंगे तो जितना हीट हम गिवन करेंगे उतना ही वर्क डन हमको मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइक्लिक प्रोसेस जब क्लॉकवाइज होगी तो उस केस में वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। पॉइंट क्लियर है? और एंटी क्लॉकवाइज होने पर
वर्क डन कैसा रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और वर्क डन जो होगा इनसाइड द साइक्लिक कर्व होगा, राइट ना, वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इनसाइड द साइक्लिक कर्व होगा। पॉइंट क्लियर, इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पॉइंट क्लियर है। चलो सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता कि भाई यहां पर वर्क डन इन साइक्लिक क्या हो गया, एरिया अंडर द ग्राफ, ओके, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पर जो हमारे पास एक पॉइंट आता है वो आता है बच्चे कि पीवी ग्राफ है और एक्सपांशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपांशन, राइट ना। सो एक्सपांशन के केस में अगर मैंने कहा कि ये प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है और ये भी एक प्रोसेस है, राइट ना, देयर इज अ 4 प्रोसेसेस, ओके। सो दिस इज नॉन एज आइसोवेरिक प्रोसेस, ठीक है, सेम वॉल्यूम तक चेंज हुआ है, आइसोवेरिक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, आइसोथर्मल, ये क्या हो जाएगा बेटा, एडियाबेटिक, और ये क्या हो जाएगा बेटा, आइसोकोरिक, ओके। सो देयर इज अ 4 प्रोसेसेस, आइसोवेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एंड आइसोकोरिक, ठीक है। तो बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है कि वर्क डन इन आइसोवेरिक इन एक्सपांशन इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल, right now, is greater than work done in adiabatic, okay, and work done in isochoric equals to 0, okay। और अगर मैं बात करता फाइनल प्रेशर की, किसकी बात करता बेटा, फाइनल प्रेशर, तो बच्चे यहाँ पे फाइनल प्रेशर के बारे में बात किया जाए तो प्रेशर इन आइसोवेरिक, ओके, मैक्स, प्रेशर इन आइसोथर्मल ग्रेटर देन प्रेशर इन एडियाबेटिक, ओके, पॉइंट क्लियर है। और नो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, आइसोकोरिक, नो चेंज इन प्रेशर आइसोकोरिक, पॉइंट क्लियर है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, चलिएगा। नेक्स्ट अगर बच्चे हम बात करते हैं कंप्रेशन के लिए, अगर बात की जाए तो कंप्रेशन के केस में आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कंप्रेशन करता हूं तो ये कंप्रेशन होगा इस टाइप से, राइट ना। तो बच्चे ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, राइट। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि वर्क डन इन एडियाबेटिक इन कंप्रेशन क्या होगा, मैक्स होगा। कंप्रेशन के केस में वर्क डन इन एडियाबेटिक में क्या होता है बेटा, मैक्स होता है। वर्क डन इन आइसोथर्मल देन वर्क डन इन आइसोवेरिक, और वर्क डन इन आइसोकोरिक कितना होगा बच्चे, यहाँ पर 0 होगा। फाइनल प्रेशर की बात की जाए तो एडियाबेटिक में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा कंप्रेशन के केस में, उसके बाद आइसोथर्मल में, उसके बाद आपका आइसोवेरिक में। सो बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करता फाइनल प्रेशर की, फाइनल प्रेशर, तो यहां पर फाइनल प्रेशर अगर देखा जाए सो P है ना, एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन P आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन P आइसोवेरिक, पॉइंट क्लियर है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, चलेगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है आपके लिए, फ्री एक्सपांशन। बच्चों इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर फ्री एक्सपांशन का केस है तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्री एक्सपांशन है वो सडन होता है, दैट्स वाई डेल की इज इक्वल टू 0, ओके। और उस पर कोई भी सिस्टम के द्वारा वर्क डन नहीं होता या सिस्टम पर वर्क डन नहीं होता, दैट्स वाई डेल W is equals to 0, that's why del U is equals to 0, hence we can say that the change in temperature will be 0, okay। So थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं, क्या, फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन। अगर बच्चे यहाँ पे हम फ्री एक्सपांशन की बात करेंगे तो इस केस में हमने एक कंटेनर लिया है जो आइसोलेटेड है, ओके, आउटर सिस्टम से एंड कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ कॉक, राइट ना, या टैब, ठीक है। एक साइड में हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है और एक साइड में हमने गैस को फिल कर रखा है, हाँ, कंप्रेस्ड गैस। अब बच्चे अगर इस केस में हम आपसे कहेंगे कि ये इंसुलेटेड है बेटा, इंसुलेटेड है, राइट ना। तो भाई इस केस में अगर टैब को सडन ओपन कर दिया जाए, सडन ओपन, सडन ओपन कर दिया जाए तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, फ्री एक्सपांशन। सो डेल Q इज इक्वल टू 0, डेल W इज इक्वल टू 0, हैंस
del u is equals to 0, that means t initial equals to t final. पॉइंट क्लियर है? मींस अगर इसको आपको सडन ओपन कर दिया जाए तो इस केस में जो गैस है वो सडन एक्सपांड होगी, इस केस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. पॉइंट क्लियर है? गुड.